तो मेरे को 2 सेकंड का टाइम दीजिएगा, मैं लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग दोनों ही ऑन करूंगी। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने। कम्युनिकेशन टुडे की 118वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कम्युनिकेशन टुडे और दिल्ली के भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज की हमारी 118वीं वेबिनार भारतीय राजनीति में राजनीतिक अभियानों के स्वरूप पर केंद्रित है। इस वेबिनार को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले मेरठ के शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर उषा साहनी, जो स्वयं साहित्य के विभिन्न विधाओं में नियमित रूप से लिख रही हैं, आपके अब तक 3 काव्य संग्रह एहसास तेरे मेरे, जिंदगी के रंग, मैं और मेरे अल्फाज प्रकाशित हो चुके हैं तथा कुछ सुनी कुछ अनकही शीघ्र प्रकाश्य है। आपकी 2 कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, हर लाइफ हिज वेज और जिंदगी ए वेब। इसके अतिरिक्त आपकी एक संपादित पुस्तक कंटेम्प्रेरी डायमेंशंस लिटरेचर सोशल मीडिया एंड रीथिंकिंग जेंडर प्रकाशित हुई है और इसी तरह आपने शेक्सपियर के ऐतिहासिक नाटकों पर अपना शोध भी पूरा किया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के साथ साथ हमारे इस आयोजन की पृष्ठभूमि में की चर्चा करते हुए आप सभी के स्वागत में अपनी बात कहें डॉक्टर उषा साहनी। धन्यवाद सर। मां शारदे के श्री चरणों में 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना। Good evening and a very warm welcome to one and all present here on this virtual platform. We all have been really fortunate that we are getting this opportunity to assemble here on this platform again and again within a very short span after every webinar. This webinar series was initiated by the thought process and the dedication of Professor Sanjeev Bhanawat, who took it with the movement of the journal, media journal, which was there as a facility for all the research scholars, academicians, practitioners, and students to work in both the languages, Hindi as well as English. Whereas at that very moment, when Professor Sanjeev Bhanawat took this decision to start this journal, at that time, more of the work was being done in English language only. But he made a point that we need to work upon Hindi language as well, and more of the people can understand this media education. So his contribution through this media bilingual quarterly journal is remarkable to the media fraternity. Also, he had worked very hard to come up with special issues related to all the contemporary topics of by then, present, or whenever we are working upon them, so that the students, the research scholars, and the people who are interested into media studies, they can get all the data and information from this journal. Also, he had put all the efforts to make a YouTube channel for the proper recording telecast, so that who are not able to attend the webinar at the given time, they can always scroll back and check with the videos available, which are being conducted through these webinars. We started this webinar with the team of Professor Sanjeev Bhanawat, who was the mastermind behind this, me as well as 100 webinars together
3 people in a team with the supervision of Professor Sanjeev Bhanawat. 2nd October 2020. And after completing 100 webinars on 25th October 2023, we got one more step ahead with the supervision of Professor Huda, who took the charge of all the technical facilities as well as providing the background support and coming up with a collaboration of this journal's journey. And now we are running 118th webinar together. So it's something which is making us always very powerful to deliver the education of media fraternity so that people can be benefited. Professor Bhanawat had taken this initiative to run a webinar series within the webinar series. That is because last webinar we have done on election only. This webinar again with a different dimension on elections, and one more is lined up. So we all are fortunate that we are getting very renowned speakers on this platform to listen from their views, their insights, and the experiences that they have got. Thank you so much, Professor Sanjeev Bhanawat and Professor Huda, who are running this together, and looking forward for today's eminent speakers with their insights. Thank you so much. आभार बहुत बहुत डॉक्टर उषा साहनी। और अब मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर एमएन हुडा से, जिनके नेतृत्व में भारतीय विद्यापीठ ने अपने शैक्षणिक परिदृश्य में एक नई पहचान बनाई है। मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से मीडिया कर्मियों की एक नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए प्रयत्नरत मूलतः कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स और पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रोफेसर हुडा, जो स्वयं एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रकाशन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के शोधार्थियों को, उस विषय के अध्येताओं को एक ऐसा मंच मिला है जहां वे अपने अनुभवों को नियमित रूप से साझा कर सकते हैं। जैसा डॉक्टर उषा ने बताया कि 101वीं वेबिनार को हम संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं। हमारे इस वेबिनार के साथ भारतीय विद्यापीठ के जुड़ने से हमारा जो ये शैक्षिक अभियान है, ये विचार अभियान है, उसको और गति मिली है और हमने इसकी उस परिधि को और व्यापक करने का प्रयास किया है। मैं डॉक्टर एमएन हुडा से अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर आप सभी के स्वागत में और अपने कुछ विचार इस विषय पर साझा करें। प्रोफेसर हुडा। Good evening, everyone. Am I audible, sir? Yes, sir. Yeah. So thank you so much, Bhanawat sir, for introducing me. In fact, I am part of your team as a host, so no need of introduction. At the outset, let me take this opportunity to welcome all the eminent speakers here who on our request, on a very special request of Bhanawat sir, has agreed to speak on such an apt and a relevant topic, that too with the present context of general elections having been announced and the process has been started. So the topic for today's program is changing contours of political campaign in India, and for which we have three eminent experts: Professor Pratap Singh from Government of Rajasthan, the former cabinet minister, such a heavy weight speaker, and then we have two other heavyweight speakers and very accomplished experts, Professor Naresh Dadiji, with whom I was just interacting, who is the former Vice Chancellor of University at Kota, and Professor Minal Chatterjee, the Regional Director at IIMC Odisha. So let's see, from Odisha to Rajasthan. That is a kind of the diversity of the speakers, and from academia to political life. Dear friends, the topic which has been kept today by Bhanawat sir is very apt, and the topic is changing contours of political campaign in India. And पिछले 75 सालों के अगर इतिहास को देखा जाए तो ऐसा समझ में आएगा कि शायद 75 साल पहले जो हो रहा था और अब जो हो रहा है, इसमें कहीं से कोई मैपिंग एस्टैब्लिश नहीं की जा सकती। मैं कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी हूं, लेकिन लिखने पढ़ने का हमेशा से शौक रहा। 4 पंक्तियां लिखी थी, वो ये लिखी थी कि इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है,
रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी पहचान क्यों रहता है? क्योंकि हम अपने आप को नहीं बदलते। एंड दैट इज हाउ अ ग्रेट पोएट गालिब सेड दैट उम्र भर गालिब करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। इस परिवेश में, इन पंक्तियों के परिवेश में, अगर हम पॉलिटिकल डिबेट के चेंजेस को देखें, पॉलिटिकल डिबेट में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एंड उस विजाविस जो कंट्री के ऑल राउंड प्रोफाइल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उन दोनों को देखें तो हमें बहुत सरप्राइजेस नजर आते हैं। अगर हम एक क्विक लुक कंट्री के चेंजिंग स्टेटा पे डालना चाहें तो देखें, इन द बैकड्रॉप ऑफ द 2024 जनरल इलेक्शंस, if we really want to understand the changing and the changing of the country, or maybe the transformed India, because that is important to understand that how the political campaign should get transformed and in which positive way it should create an impact. So 21st century India is an India where more than half of the population is below 25 years and 2/3 is less than 35 years. So such a young India. Middle class is also growing from earlier figure of 5 to 6% to now close to 25 to 30% in of the total population of the country. The last census of India reveals that more than 30% people are now living in urban areas, which number may go further up if we see the kind of satellite images and ignore the definition given by the government census and the government reports, or maybe fine tune the definition of the urban habitations. The smartphone users have increased in 2017. One of the data shows that the smartphone users were 404 million, which has increased by 2022, 829 million. So almost more than double. The agriculture share of in the GDP, which was earlier close to 50%, 40 to 50%, has declined to the extent of hardly around 10 to 15%. And this is the changed India. The people are less dependent on agriculture and more dependent on job, more dependent on services, more dependent on other kind of businesses. This is the changing contours of Indian strata and the population profile. Literacy and skill levels have grown, and yet the organized and secure sector of the unemployment has shrunk, and it is the unorganized sector primarily in our country which is giving the maximum employment. Close to 80% of the workforce is employed in unorganized sector. This is a kind of data which reflects the changes in the country. There is an upswing in the number of the people coming out to vote now. Earlier, the voting percentage used to be between 30 to 40%. Now the percentages have gone from 50 to 70 and somewhere around 80 plus. So that is again a change. A rise in number of the political parties contesting elections, that has gone manifold. And of course, an increase in the number of the electoral disputes year after year. That is also happening. And we remember the historic judgment when the election of Mrs. Gandhi was cancelled by the Allahabad High Court. All of these are showing that the India has changed a lot, and under this changing environment, the politicians and the political parties have to understand these changing contours of the India and has to ensure that the political debate should go and address to the concern of the people. Whereas we see today that in India, which is more politically conscious country, young country, urban middle class is very high now. On the move, people are moving from one place to other place. People are relatively more skilled now, more connected because of the penetration of the smartphones and other electronic gadgets, exposed to technology compared to even the last 2-3 elections, or maybe around last 20 years. These data shows us that the entire expectations of the people from the political parties and from their government has changed. And now during the political campaign, discussion for 2024 elections should be focusing on these changing contours. What are the political parties offering now into the transformed electorate? We need to understand. The question before us: what have the electorate asking from them?
What are the focus points which, as a citizen, as a common man, we expect from our parties? What is the design and the language of the campaign? If we see, there have been a huge deterioration in the level of the languages which the political parties and our politicians are using in these elections for each other. How far are these aligned to the issues which voters primarily identify and are expecting from our political parties and from the politicians, or maybe from the would-be coming government? Asking these questions while this electoral campaign is important for all of us, and that is why it is said that there is always a possibility of a disjunction between the issues projected by the parties as important as the issues that the voters feel are important and useful for their respective area, for their respective constituency. Unless we focus on these issues, unless we focus on the concern of the voters, unless we take care of the need of the local constituency and the local people, probably we will keep on talking about issues and at the level and kind of the languages which ideally disappoint all of us. That is what we three experts have been invited, so that they should enlighten us, and it should be a matter of knowledge to all students, all teachers, all research scholars, few people from respective industries who have joined, to understand that where we are, where we wanted to go, we in a position to share it. With this note, I wanted to conclude that ये जो political parties हैं, अगर ये सचमुच समझें कि हमें कुछ अच्छा करना है, तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं. And India, which is the largest democracy of the world, can project itself to as a role model democracy for rest of the world. That is what is expected out of the present day political campaign. Thank you so much. Over to you, Banawat sir. आभार बहुत बहुत थोड़ा साहब आपका. आपने भारतीय राजनीति के उस बदलते परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में राजनीतिक दलों की भूमिका और मतदाताओं में बढ़ती जागरूकता की ओर संकेत करते हुए उन चुनौतियों से किस तरह से निपटा जाए उसकी ओर आपने संकेत किया. और एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो भाषा के संदर्भ में आपने उठाया, बल्कि मैं तो कल से ये सोच रहा था कि चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह की भाषा का प्रयोग होने लगा है, उस पर भी एक चर्चा हो सकती है. जो आपने कहा कि कितना डिटोरेशन हुआ है, जिस तरह से अवमूल्यन हुआ है, वो भी मुझे लगता है कि समाज के उस बौद्धिक वर्ग के प्रतिनिधि के नाते कहीं हमें उस पर भी अपनी चिंता और विचार प्रकट करने चाहिए. बहुत बहुत आभार आपका. इससे पूर्व के हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं प्रियंका सिंह भारतीय विद्यापीठ में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रही है. शिक्षण में जुड़ने से पूर्व वो आरजे के रूप में भी रेडियो से जुड़ी रही हैं. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नोएडा सेंटर से आपने मास्टर्स उपाधि प्राप्त की. रेडियो और रिपोर्टिंग में आपकी विशेषज्ञता है और बहुत सारे जो इवेंट्स हैं उनको भी आपने एक तरह से मैनेज किया है. FBB मिस इंडिया और GST कॉन्फ्रेंस आदि कई इस प्रकार के इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स हैं, उनके आयोजन के साथ आप जुड़ी रहीं. और एक शिक्षक के नाते विभिन्न प्रकार की सेमिनार्स और शोध पत्रों के प्रकाशन की दिशा में आप संलग्न हैं. और इस समय रेडियो पॉडकास्टिंग पर आप अपनी PhD कर रही हैं. उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे ई-बुके से हमारे आज के सभी प्रतिभागियों का, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका स्वागत करें. प्रियंका सिंह. नमस्कार सर, थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आप सबका वेलकम कर सकूं इस ई बुके के द्वारा. और आई होप जिस तरीके से ये ई बुके शाइन कर रहा है और स्पार्क कर रहा है, वैसे ही आप सबकी भी लाइफ में एक स्पार्क और एक वो चमक आए जिससे हम आगे की ओर बढ़ते जाएं. थैंक यू सो मच सर. इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम. स्पार्क भी कर रहा है, शाइन भी कर रहा है जी सर. और खुशबू भी दे रहा है. परिवेश बिल्कुल. बदल रहा है, परिप्रेक्ष्य बदल रहा है. जैसे पॉलिटिकल कैंपेन बदल रहा, इंडिया का स्टैटिस्टिकल स्ट्रेटा एंड लोगों का प्रोफाइल बदल रहा है, वैसे बुके प्रेजेंट करने का तरीका भी बदला है. और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि चाहे बुके इलेक्ट्रॉनिक हो या फिजिकली हम हैंड ओवर करें, खुशबू सिर्फ महसूस की जाती है. और खुशबू के बारे में हम ये स्टेट ऑफ माइंड है जिसे समझ के इसको महसूस करना शुरू करें. 2 पंक्तियां लिखी थी कि बड़ी मुश्किल में हूँ कैसे इजहार करूं, तू तो खुशबू है कैसे गिरफ्तार करूं.
तो इस खुशबू को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इन्हीं एहसासात के साथ हमारे जितने अतिथि हैं, जितने एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने दिल के अंदर इस खुशबू को महसूस करें और इस खुशबू के साथ आगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। इस बुके की जिस खुशबू और चमक की अपेक्षाएं आपने की है, उम्मीद करते हैं हमारी ये जो विचार श्रृंखला है पिछले 3.5 वर्षों की, ये इसी प्रकार में देश में एक जागरूकता की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर पाएगी। जैसा हम बार बार कहते हैं कि ये जो विचारों का निवेश है, इसमें समय लगता है, इस परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है, इस पे लगातार हैमरिंग होती रहनी चाहिए और हम इसी दिशा में एक छोटा सा ये प्रयास कर रहे हैं। जैसा हुडा जी ने अपनी बातचीत में कहा कि इस समय देश में राजनीतिक दलों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं राजनीतिक दल, जो अपनी नीतियां तय करते हैं और उन नीतियों को लेकर के चुनाव के समय वो मतदाता के सामने जाते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं और अपने लिए वोट देने की अपील करते हैं और उसी के आधार पर सरकारों का निर्माण होता है, सरकारें बनती बिगड़ती हैं। ये एक मूल जो हमारे सामने एक उसका जो परिप्रेक्ष्य है वो है। 1952 में जब देश में आजादी के बाद पहली बार चुनाव हुआ था, तब से लेकर आज तक जिस चुनाव अभियान जो हमारा आज का मुख्य विषय है, जैसा बताया गया कि हम 3 वेबिनार हमने प्लान किए इलेक्शन को लेकर के। पिछली बार हमने इलेक्शन कवरेज में मीडिया कर्मियों की भूमिका पर चर्चा की थी। आज हम उस अभियान की बात कर रहे हैं और अगली जो वेबिनार है हमारी 18 अप्रैल को, उस पर मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज की जो चुनौती है उस पर हम विशेषज्ञों के साथ संवाद करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा दौर है, हमारे जो यहाँ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं उन्हें ध्यान होगा, एक समय था घर की दीवारों के बाहर नाम से और प्रचार किया जाता था, स्लोगन लिख दिए जाते थे, जगह जगह पोस्टर लगाए जाते थे। बाद में चुनाव आयोग ने इसे प्रतिबंधित किया, तो फिर इसका स्वरूप बदला, टैक्सियों में, गाड़ियों में इस तरह से वो लाउड स्पीकर लगा के प्रचार किया जाता था। तो हर राजनीतिक दल ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी कल्पनाशीलता के, रचनात्मकता के आधार पर इस तरह के प्रयोग किए। बाद में फिर आकाशवाणी, दूरदर्शन ने भी समय दिया सभी राजनीतिक दलों को कि वहां पर वो अपनी बात कह पाए। जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक प्रावधान है, उनके तहत कि आप डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं देंगे, सांप्रदायिक विमर्श नहीं फैलाएंगे, आदि आदि। इलेक्शन कमीशन ने भी पिछली बार काफी विस्तार से चर्चा हुई थी कि इस तरह की गाइडलाइंस दी है। तो ये जो हमारा ऑफिशियल मीडिया है आकाशवाणी, दूरदर्शन, इस पर भी प्रचार की सुविधा दी गई और धीरे धीरे हम आज उस डिजिटल दौर में आ गए हैं। इसके बहुत सारे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं और नारों के माध्यम से तो मुझे लगता है कि कई बार सरकारें, गरीबी हटाओ का नारा जब इंदिरा जी ने दिया था तो लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्होंने की थी। तो ऐसे नारों के माध्यम से, चाहे आजादी के पहले का दौर हो, उस समय भी इस तरह के नारे लगाए गए थे। करो या मरो गांधी का आह्वान था, अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे नारों ने, या सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद, या दिल्ली चलो, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या लोकमान्य तिलक का स्वराज्य मेरा जनसिद्ध अधिकार है। इस तरह के नारों से देश में एक जन चेतना जगाने की कोशिश की गई और कालांतर में जब राजनीतिक अभियान शुरू हुए तो ऐसे हर चुनाव के दौरान इस तरह के नारे आज भी हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं गूंजते रहते हैं। जब शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान की बात कही। जैसा मैंने कहा कि इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ की बात की और जब आपातकाल लगाया गया और उसके बाद जब चुनाव हुए तो जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा हटाओ देश बचाओ जैसे नारे दिए। और जब चिकमगलूर से बाई इलेक्शन हुआ और वहां इंदिरा जी खड़ी हुई तो एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमगलूर जैसे नारे लगाए गए। जब इंदिरा जी का निधन हुआ उस समय जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, इस तरह के नारे लगाए और उसमें भी उनको चुनाव में विजय मिली। जब वाजपेयी जी आए तो जांचा परखा और इस तरह की बातें उनके लिए लगाई, या सबको देखा बारी बारी अब की बार अटल बिहारी। तो इस तरह के बहुत सारे नारे जो हैं, इंडिया शाइनिंग के नारे लगाए गए। कितना सफल हुआ कितना विफल हुआ हम ये सब जानते हैं। और उसके बाद सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आने वाले हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी, इस तरह के नारे। तो इस तरह के चुनाव अभियान हमारे यहाँ समय समय पर चलते रहे और जिस तरह से डिजिटल मीडिया का विस्तार हुआ है उसने हमारे सारे स्वरूप को बदल दिया है। तो आइए इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करते हैं। हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जो शोधार्थी हैं, जिन्होंने लंबे समय तक इन विषयों का अध्ययन, अध्यापन और चिंतन मनन किया है,
उनसे हम जानेंगे। हमने जैसा बताया गया आपको 3 एक्सपर्ट्स को यहाँ बुलाया था। प्रताप सिंह जी खाचरियावास जो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे और इस समय लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। मुझे लगता है अभी तक मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ, शायद वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। जब भी वो ज्वाइन करेंगे तो हम उनकी बात सुनेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर नरेश दाधीच हैं और साथ में प्रोफेसर मृणाल चटर्जी, ये दोनों हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं प्रोफेसर नरेश दाधीच जी को आमंत्रित करूंगा। प्रोफेसर नरेश दाधीच, हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में लंबे समय तक आपने अध्यापन कार्य किया। इसी विश्वविद्यालय से आपने एमए, एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 2006 से 2013 तक 2 टर्म आपको काम करने का मौका मिला कुलपति के रूप में भगवान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। तो वहां रहते हुए आपने अपनी इस जो 6 साल की जो आपकी पारी थी, वहां आपने उस विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए न सिर्फ एनरोलमेंट की दृष्टि से बल्कि शैक्षणिक गुणवत्ता की दृष्टि से भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय में सेवारत रहते हुए राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष पद पर, सेंटर फॉर गांधीयन स्टडीज के डायरेक्टर के रूप में, और उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद आईडीएस इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, इसके भी आप मानद निदेशक रहे। तो एक तरह से राजनीति विज्ञान के साथ साथ आप गांधी दर्शन के भी अध्येता हैं। चिंतन मनन आपने क्षेत्र में भी किया है। आपकी राजनीति विज्ञान के साथ साथ साहित्य की विभिन्न विधाओं में, विशेषकर कविताओं में आपकी विशेष रुचि है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम उनको अक्सर पढ़ते रहे हैं और आपके अनेक काव्य संकलन भी प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग 40 से अधिक शोध पत्र आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। यूजीसी, नेक और एनसीईआरटी की समितियों के साथ आपका सक्रिय जुड़ाव रहा है। पीस फाउंडेशन कमीशन के आप अध्यक्ष रह चुके हैं और दुनिया के अनेक देशों में आपको एकेडमिक असाइनमेंट्स के रूप में यात्रा करने का अवसर मिला है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, इजराइल, टर्की, दक्षिण अफ्रीका, हंगरी आदि अनेक देश हैं जहां समय समय पर आप जाते रहे हैं। तो राजनीति शास्त्र के एक विद्वान के रूप में जो आपका ये व्यापक अनुभव है, तो हमने आपसे निवेदन किया है कि आप इस 75 वर्षों की इस पूरी यात्रा को किस रूप में देखते हैं, हमारे साथ अपना अनुभव साझा करें। प्रोफेसर नरेश दाधीच। धन्यवाद बहुत बहुत संजीव जी को, हुडा साहब को, उषा साहनी जी को और प्रियंका सिंह जी को। 4 ही लोग आए और बाकी जितने भी सहभागी हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको भी नमस्कार। ये बड़ा अच्छा टॉपिक आप लोगों ने चुना है। इस समय चुनाव चल रहे हैं और कैंपेनिंग चेंज हो चुकी है। आप देखेंगे कि अगर हम कैंपेनिंग की बात करें तो टीएन शेषन जब बने थे चुनाव आयोग के अध्यक्ष 1991 में, उस चुनाव से काफी परिवर्तन आया है, क्योंकि उन्होंने जो शक्तियां चुनाव आयोग के पास है उनको उन्होंने लागू कराने का प्रयास किया कठोरता से, और उसके बाद से थोड़ा परिवर्तन हुआ। जो अभी संजीव जी कह रहे थे कि बचपन से या पहले हमने खूब देखे हैं, टांगों में और टेम्पू में और बिल्ले बढ़ते थे छोटे छोटे, दीपक के और उसके गाय बैल के, तो वो गाय और बछड़े के, तो वो उसके बाद में 1991 के बाद में वो परिवर्तित हो गए और अब तो खैर बहुत चेंज आ चुका है। चुनाव से पहले मैं एक थोड़ी सी बात और करना चाहूंगा डेमोक्रेसी के बारे में, क्योंकि चुनाव डेमोक्रेसी का आधार है। प्रजातंत्र की जो परिभाषा है उसमें माना जाता है कि जनता से द्वारा चुना गया शासक हो, और जनता शासक को कैसे चुने उसका एक सबसे अच्छा तरीका है चुनाव। और अगर किसी देश में निरंतर चुनाव होते रहते हैं तो माना जाता है कि वहां पर प्रजातंत्र है। भारत के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से देश आजाद हुए थे, लेकिन अब देख सकते हैं भारत के अलावा किसी देश में इतनी निरंतरता नहीं रही है चुनावों के लेकर। यहाँ लगभग हमेशा समय पर चुनाव हुए, एक आध बार थोड़ा बहुत छोड़ के। इसलिए इस निरंतरता के कारण से भारत में हम कहते हैं कि प्रजातंत्र बहुत सुदृढ़ है, मजबूत है और आगे बढ़ रहा है। और पूरे देश, पूरी दुनिया में जब प्रजातंत्र की, बड़े प्रजातंत्रों की बात होती है तो भारत और अमेरिका का नाम लिया जाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, कि हम चाहे कितनी ही भारत के प्रजातंत्र की बात करें, और जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि यहाँ पर चुनाव होते रहते हैं, लेकिन दुनिया में जिन्होंने प्रजातंत्र का अध्ययन किया है, जो बहुत, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता रहा हूँ तो डेमोक्रेसी को पढ़ाना हमारा एक टॉपिक होता था हमेशा। तो दुनिया भर में जो विद्वान प्रजातंत्र का अध्ययन करते रहे हैं, उन्होंने कभी भी भारत का उल्लेख
बहुत ही उत्साह से नहीं किया भारत दुनिया के प्रजातंत्र में। मैं उदाहरण दूंगा आपको, एक 3 उदाहरण दूंगा मैं। 3 प्रजातंत्र का अध्ययन करने वाले विश्वविख्यात विद्वान हैं जिनको सब लोग कक्षाओं में पढ़ाते हैं। एक है आर.एन. लिचपार्ट। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी डेमोक्रेसीज 1984 में, और उन्होंने इसमें इंडिया का उल्लेख नहीं किया। यानी 1984 में दुनिया भर के अधिकतर पश्चिमी प्रजातंत्र की बात की थी उन्होंने, उसमें भारत का उल्लेख ही नहीं किया कि भारत प्रजातंत्र है। 1999 में उनकी दूसरी पुस्तक आई पैटर्न्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें उन्होंने भारत का उल्लेख किया है। यानी भारत में प्रजातंत्र 1947 से है, और 1999 में जाकर रिकॉग्नाइज किया गया कि भारत में एक विद्वान के द्वारा कि हाँ भारत में भी प्रजातंत्र है। दूसरा उदाहरण है, एक और विद्वान है रॉबर्ट डाहल। उन्होंने 1989 में पुस्तक लिखी थी डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, और उसमें भारत को केवल 2 जगह पर मेंशन किया, और उसमें भी उनकी आलोचना की कि भारत में प्रजातंत्र सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है। इसका उदाहरण दिया उन्होंने। और बाद में सन 2000 में उनकी पुस्तक आई ऑन डेमोक्रेसी, उसमें उन्होंने मेंशन किया दैट इंडिया इज ए इम्प्रोबेबल डेमोक्रेसी, एक ऐसा प्रजातंत्र है जो कि संभव नहीं है होना। तीसरा उदाहरण मैं और देना चाहूंगा कि डेविड हेल्ड, एक और विचारक है, उसकी पुस्तक है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी जो हम कक्षाओं में पढ़ाते हैं। उसमें इंडिया को केवल चाइना के साथ मेंशन किया गया है कि यहाँ पर इकोनॉमी तेजी से परिवर्तित हो रही है। मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी में इंडिया के मॉडल को मॉडल नहीं माना गया। यानी इसका अर्थ क्या है कि दुनिया में जो रिसर्च करते हैं डेमोक्रेसी पे, उन्होंने भारत को डेमोक्रेसी इस लायक ही नहीं माना कि इसको एक एग्जाम्पल दिया जाए कि भारत में डेमोक्रेसी है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है, एक विद्वान है अमेरिकन प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के, उनका नाम था नाम भूल रहा हूं मैं उनका, सेलिग हैरिसन। सेलिग हैरिसन आए थे 1957 के चुनाव का अध्ययन करने के लिए भारत में, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी उसके बाद में उसका अध्ययन करके, इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड अहेड, यानी भारत आने वाला दशक उसके लिए बहुत खतरनाक है। किस दृष्टि से? प्रजातंत्र की दृष्टि से। उसका यह मानना था, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, कि 1957 का चुनाव भारत का आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद भारत में चुनाव होने संभव नहीं है। ये जितने भी लोग मैंने मेंशन किए हैं, जिसमें लेजपर्ट ने तो अध्ययन ही किया यहाँ पर आकर, उन सब का जो आर्ग्यूमेंट था कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है या ऐसी डेमोक्रेसी नहीं है जिसका उल्लेख किया जाए, उसका कारण था भारत की जाति व्यवस्था। क्योंकि डेमोक्रेसी जिन मूल्यों पर आधारित होती है वो होती है समानता। हर व्यक्ति के पास एक वोट होता है, हम जानते हैं, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही छोटा व्यक्ति हो, यानी एक अर्थ में सब समान है। लेकिन ये सब लोग मानते हैं कि भारत में सामाजिक रूप से असमानता भारतीय समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो जब अनिवार्य रूप से हम असमान हैं, तो हम समानता के सिद्धांत को कब तक अपने अंदर समायोजित करेंगे? इसलिए इनमें जब टकराहट होगी तो समानता का सिद्धांत टूट जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, जैसे बहुत से देशों में हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी चल रही है। अभी इलेक्शन हो रहे हैं, इतने वर्षों से इलेक्शन हो रहे हैं। उसका क्या कारण है? उसका एक्सप्लेनेशन एक विद्वान थे हमारे रजनी कोठारी, उसने दिया था। उसने कहा जाति के होने के कारण ही भारत में प्रजातंत्र है। अब वो बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन उन्होंने इतना कहा कि जाति एक समूह होती है और प्रजातंत्र में समूह होना का निर्माण होना आवश्यक है, तभी प्रजातंत्र चलता है। व्यक्तियों का चुनाव नहीं होता, समूहों के हितों का चुनाव होता है। तो भारत में जाति एक बने बनाए समूह मिल गए, मॉडर्नाइजेशन तो था नहीं, तो नए समूह तो पैदा हुए नहीं, तो एक बना बनाया समूह था, उसको डेमोक्रेसी ने उसका पॉलिटिसाइजेशन कर दिया। तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये उनकी थीसिस थी। चलिए, ये मैंने एक बैकग्राउंड दिया आप लोगों को समझने के लिए कि भारत में प्रजातंत्र एक अलग प्रकार का है दुनिया के प्रजातंत्र से।
अब हम देखें जो टॉपिक अपना लिया है कि चेंजिंग कॉन्टूर्स ऑफ पॉलिटिकल कैंपेनिंग। तो अगर हम 1952 में जो पहला चुनाव हुआ 51-52 में, उससे 2019 तक के चुनाव की बात करें तो मैंने इसको 4 पॉइंट में देखने की कोशिश की है। 4 बिंदु हैं जो परिवर्तित हुए हैं इस टॉपिक की दृष्टि से। और भी बहुत सी चीजें हुई है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कैंपेनिंग की दृष्टि से 4 महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं 1952 से 2019 के बीच में, जिसके कारण भारत की कैंपेनिंग में परिवर्तन आया है। पहला इसका थोड़ा सा इंडिकेशन दिया गया था, वो है चेंजिंग नेचर ऑफ इलेक्टोरेट। जो चुनाव में वोट देते हैं, वोटर हैं, उनकी प्रकृति बदल गई है। प्रकृति कैसे बदली है? एक तो संख्या में 1951 का जो कंसेंसस था उसके अनुसार भारत की आबादी 36 करोड़ थी। 2011 के अनुसार 120 करोड़ हो गई और अभी 2021 में नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस समय लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है। तो आप कल्पना कीजिए, जब हम चुनावी कैंपेन की बात करते हैं तो एक तो 36 करोड़ में चुनावी कैंपेन करना और एक 140 करोड़ में चुनाव कैंपेन करना, तो परिवर्तन होना लाजमी है। दूसरी क्या है कि चुनाव में वोट देना, या उससे भी पहले हम लें तो जो लिटरेसी रेट है, क्योंकि चुनाव में वोट देने को मानते हैं कि चुनावी कॉन्शियसनेस, जो एक आदमी एक वोट देता है तो वो चुनाव में उसकी चेतना जागृत होनी चाहिए, राजनीतिक चेतना, कि वो सोचे किसको वोट देना चाहिए। और राजनीतिक चेतना जागृत होने के लिए ये माना जाता है कम से कम लिटरेट तो हो, पढ़ तो सके, तभी तो उसको कुछ समझ में आएगा। तो अगर आप लिटरेसी रेट देखें तो 1951 में 18% लिटरेसी रेट थी। 18% लोग लिटरेट थे, एजुकेटेड नहीं थे, लिटरेट थे। यानी 40 करोड़ में से 36 करोड़ में से 18% ही लिटरेट थे। आज 2011 के सेंसस में 74% लिटरेसी मानी गई। और फिर अगर हम बात करें आज 2021 की 22 की, तो अनऑफिशियल तरीके से हम कहते हैं कि इस समय 81% लोग लिटरेट हो चुके हैं। आज जो लिटरेसी की परिभाषा मानी जाती है वो थी कि क्या वो हस्ताक्षर कर सकते हैं, इसको लिटरेट, क्या वो अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं, अंगूठा छाप नहीं है क्या? अगर हस्ताक्षर कर सकते हैं तो माना जाएगा कि वो पढ़ भी सकते हैं। तो पढ़ेंगे तभी तो जो अपना हस्ताक्षर करेंगे उसको पढ़ तो सकेंगे, तभी तो बताएंगे मैंने क्या लिखा है। तो पढ़ सकते हो और लिखने में हस्ताक्षर कर सकते हो। आज लिटरेसी की हो गया कि वो क्या स्मार्टफोन का प्रयोग कर सकते हैं क्या? आज लिटरेसी की डेफिनेशन बदलती जा रही है। आजकल लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या आप इंटरनेट देख सकते हो, क्या आप सोशल मीडिया देख सकते हो? अगर आप देख सकते हो यू आर लिटरेट, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उन्हीं से आ रही। खैर जो भी है, तो लिटरेसी रेट 18% से 81% हो गई है। अगर 18% के लोगों को जैसी कैंपेनिंग की जरूरत थी, आप सोच सकते हैं कि आज 81% होने पर कैसे कैंपेनिंग की जरूरत होगी। तो अपने आप ही चेंज उसमें आएगा। तीसरी बात, वोटिंग परसेंटेज। 1952 में वोटिंग परसेंटेज थी 45%, क्योंकि चेतना ही नहीं थी, राष्ट्रीय चेतना कि वोट देने से क्या फायदा होता है, उनको पता ही नहीं था लोगों को। तो 45% थी, धीरे 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 बढ़ती गई और सन 2000 के बाद में ये तेजी से बढ़नी आरंभ होती है, जब इंटरनेट आ गया उसके बाद से। और आज जो वोटिंग परसेंटेज जो 2019 में हुई थी वो है 67.40%, यानी 45 से 67%, यानी 22% वोटिंग परसेंटेज बढ़ चुकी है। अब इसको आप एक्चुअल पॉपुलेशन को माने तो आप सोचिए कितने लोग, यानी लगभग 100 करोड़ लोग वोट देने वाले हैं इस बार। और उस समय दिए थे कितने? 36 करोड़ के 45%, यानी 36 के भी आधे 18 करोड़, 18 से भी कम 17 करोड़ लोगों ने वोट दिए थे और आज 100 करोड़ लोग वोट देने जा रहे हैं। ये पहली बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और ये बहुत खुशी की बात है और आश्चर्यजनक बात है, आश्चर्यजनक खुशी है। इतनी संख्या बढ़ने पर भी अभी तक डेमोक्रेसी चल रही है, विवाद नहीं हुआ है।
प्रजातंत्र के बारे में लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, इसलिए लोग वोटों की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। आप इसको पश्चिम से तुलना करें तो पश्चिम में वोटिंग परसेंटेज कम हो रही है, और वहां ये चिंता का विषय है पश्चिम की डेमोक्रेसीज में कि लोग इंडिफरेंट होते जा रहे हैं कि वोट देने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं, क्या है, कोई भी जीत जाए हमें क्या फायदा, ये हमें कोई मतलब ही नहीं है। फायदा क्यों? क्योंकि वहां पर जो सिस्टम है वो पॉलिटिकल लीडरशिप से इंडिपेंडेंट हो चुका है। वह आम आदमी को अपनी मुश्किलों को सॉल्व करने के लिए राजनेताओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां अधिकतर तो मुश्किलें अपने आप ही सॉल्व होती है, सिस्टम से हो जाती है। लोग इतने व्यवस्थित हो चुके हैं रोज के कार्यों में कि उनको किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं है, और अगर कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश भी करता है तो उसको करने नहीं देते। आप देखिए अमेरिका में ट्रम्प महोदय आए थे, उन्होंने पूरा चेंज करने की कोशिश की कि मैं मैक्सिको के उस पर पूरी एक बाड़ लगा दूंगा, तार लगा दूंगा। वो 4 साल रह गए, उनसे तार लगा ही नहीं। अब फिर कोशिश कर रहे हैं वो, क्योंकि वो सिस्टम को एकदम से चेंज करने को वो अलाउ नहीं करते जनता। वो सिस्टम इतने इतने चेक एंड बैलेंसेस हैं कि एक आदमी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पॉलिटिक्स के बारे में उनकी रुचि सिर्फ टीवी डिबेट्स देखने में है, उसमें देखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। दे वांट एंटरटेनमेंट इवन ऑफ पॉलिटिक्स, लाइक वी वॉच कपिल शर्मा शो। तो अमेरिकन्स वॉच टीवी डिबेट्स एंड इट इज लाइक फॉर देम इट इज एन एंटरटेनमेंट। किसके कितने नंबर आए, कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे हुआ, उसको एंजॉय करते हैं। इसके अलावा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है वोट देने में। ये पहला परिवर्तन जो आया है, जो मैंने आपको बताया, चेंजिंग नेचर ऑफ इलेक्टोरेट। दूसरा परिवर्तन आया है चेंजिंग नेचर ऑफ पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज। हम कक्षाओं में पढ़ाते थे, जो रजनी कोठारी ने कॉन्सेप्चुलाइज किया था कि हमारी डेमोक्रेसी एक अलग प्रकार की डेमोक्रेसी है जिसे कहा जाता है वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। यानी या बहुत सारी पार्टीज को आजादी है, कोई भी पॉलिटिक्स, जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बन सकती है, बड़ी आसान है पॉलिटिकल पार्टी बनाना, रजिस्टर कर लीजिए आप। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन एक ही पार्टी का डोमिनेंस रहा है, जो रजनी कोठारी ने 1970 में ये घोषणा की थी। उसको हम देख सकते हैं कि 2014 तक, 1952 से 2014 के चुनाव तक वन पार्टी डोमिनेंस रहा है। और अब भी कुछ लोग कहते हैं कि ये वन पार्टी डोमिनेंस ही है आज की तारीख में भी, क्योंकि जो पहली जिसने चुनाव जीता है 2014 में, 2019 में, उसके बाद जो दूसरी पार्टी है, यानी पहली पार्टी तो है 300 सीट्स की, और जो नंबर 2 है उसके 50। तो आप देखिए कि कितना अंतर है। इसका अर्थ क्या है कि वही पार्टी डोमिनेंस है। कांग्रेस नहीं है, बीजेपी है। फर्क इतना ही पड़ा है कि कांग्रेस नहीं होकर बीजेपी हो गई है, लेकिन राह वही है, वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम। लेकिन मेरा मत थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, और वो इसलिए डिफरेंट है कि पहले वन पार्टी डोमिनेंस था, दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी। अगर आप फर्स्ट इलेक्शन, सेकंड इलेक्शन, थर्ड इलेक्शन, यानी 1967 तक के चुनाव देखें तो नंबर 2 पार्टी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टियां हुआ करती थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, सीपीएम, ये नंबर 2 पार्टी होती थी, जिनका बहुत छोटे से क्षेत्र में केरल में और पश्चिम बंगाल में उनका शासन होता था। आज चाहे सीट्स कम आई हो, कांग्रेस इंटरनेशनल बहुत बड़ी पार्टी है, उसकी सीट कम आई हो, लेकिन बहुत सी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका पिछले 25-30 सालों से स्वतंत्र अस्तित्व है, जिनको हिला नहीं पा रहे कम से कम राज्यों के इलेक्शंस में। आप देखिए यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी, बिहार में जनता दल आरजेडी की पार्टी, बंगाल में ममता की पार्टी, उड़ीसा के अंदर पटनायक की पार्टी, तमिलनाडु में डीएमके एडीएमके पार्टी, महाराष्ट्र में शिवसेना। ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पिछले 25-30 सालों में जम चुकी है, कम से कम विधानसभाओं में जम चुकी है। लोकसभा में इनकी सीट्स कम आती है, लेकिन विधानसभाओं में इन्होंने नेशनल पार्टीज को खत्म कर दिया है। इसलिए ये पार्टी सिस्टम में परिवर्तन आया बहुत बड़ा। 1967 तक पहले कोई भी पार्टी किसी भी स्टेट में शासन नहीं कर पा रही थी सिवाय कांग्रेस के। 67 में पहली बार कंबाइंड अपोजिशन ने कांग्रेस को राज्यों के चुनाव में हराया था, लेकिन फिर भी वो इतनी मजबूत नहीं बन पाई। जो कांग्रेस के विरोध में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज राज्यों में अपनी जड़ें जमाने लगी, वो 1989 के बाद में हुआ है। 1989 के बाद में हम कह सकते हैं धीरे धीरे शिवसेना जैसे एमर्ज हुई 90s में, वो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव एमर्ज हुए 90s में, मायावती एमर्ज हुई 90s में,
1990 के दशक में ये नए पॉलिटिकल पार्टीज बनी है जो अभी तक है, सिवाय मायावती की पार्टी कमजोर हो गई है, बाकी सभी पार्टी किसी न किसी रूप में अभी भी कांग्रेस को भी हटा दिया है और बीजेपी को भी हटा रखा है। तो दिस इज अ सेकंड इंपॉर्टेंट चेंज in the political scenario of Indian politics, that now we are witnessing not one party dominant system, although it is one party, but the contour of the political structure of political parties have changed. अब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत बड़ा सत्य बनकर इसमें आ चुका है। ये सेकंड चेंज, मैं इसकी बताऊंगा इसका मतलब क्या निकलेगा। तीसरा है वो है मल्टीपल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। आप देखेंगे 1952 के चुनाव में जैसा बताया सिर्फ लाउड स्पीकर था जो आपके पास चुनाव का था कि आप कहीं जाओ या तो बस जाओ बैलगाड़ी में जाओ, ऑटो में जाओ या और कैसे जाओ और लाउड स्पीकर लगा लो मैक्सिमम बस और उससे प्रचार कर लो या घर घर चले जाओ। उससे आज ये जो चेंजेस आए वो है मल्टीपल कम्युनिकेशन के सिस्टम आ चुके हैं और पॉलिटिकल पार्टी को हर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन में हिस्सा लेना होता है वरना वो पीछे रह जाए। 1982 में जो भारत में एशियन गेम्स हुए थे उसमें टीवी पहली बार रंगीन टीवी आया, राजीव गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया और वो पूरी जगह देखने हम लगे। 1980 का दशक टीवी का दशक था, रामायण महाभारत ये सब टीवी पर दिखाई गई थी, हम सब लोग जानते हैं। और 1984 का पहला इलेक्शन था जिसमें टीवी का प्रयोग पॉलिटिकल कैंपेनिंग में किया गया था बहुत व्यापक स्तर पर। अब जानते हैं इंदिरा जी की मृत्यु हुई थी, दुखद मृत्यु हुई थी, हत्या की गई थी, उसके सीन्स दिखाए गए थे, इमोशनल अपील की गई थी और लोग उससे प्रभावित भी हुए थे। तो 1984 में पहली बार टीवी इलेक्शन में एंटर करता है और 1990s में इंटरनेट आ जाता है, लेकिन इसका यूज सबसे पहले 2004 के चुनाव में हुआ था इंटरनेट का, जिसको व्यापक रूप से हम एक्सेप्ट करते हैं पॉलिटिकल कैंपेनर्स कि 2004 का चुनाव जो इंडिया शाइनिंग हारा था उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि इंटरनेट पर इंटरनेशनल जो न्यूज और इंफॉर्मेशन और व्यूज लोगों के सामने आई थी उससे उनको लगा था कि ये इंडिया शाइनिंग कैंपेन सही नहीं है, कांग्रेस ज्यादा अच्छी है। दैट वाज द कंट्रीब्यूशन, इस पर रिसर्च हो रही है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेट। और 2014 के चुनाव में सोशल मीडिया आया, सबसे पहले यूज किया गया इसे। आज ये सब मौजूद हैं, कोई कम नहीं हुआ है, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है और सोशल मीडिया है और ट्रेडिशनल घरों घरों पे जाकर वोट मांगने का सिस्टम तो है ही। तो आप देखिए ये जो मल्टीपल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है बन चुका है, इसने भी इस पॉलिटिकल कैंपेन को बहुत प्रभावित किया है। और अंतिम बिंदु कि जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते थे उनकी पॉलिटिकल विल में परिवर्तन आया है, राजनीतिक इच्छा में। आप देखेंगे कि जब भारत आजाद हुआ और कांग्रेस पार्टी शासन में आई उस समय भारत में और कुछ नहीं था सिवाय इसके कि कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी, उसने देश को आजाद कराया, अब ये शासन करना चाहती है इसलिए इनको वोट दिए जाए। जो लोग उनसे नाराज थे व्यक्तिगत रूप से, नेहरू जी से, पुरुषोत्तम दास टंडन, अंबेडकर या राजगोपालाचारी या राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग पार्टीज बना ली, लेकिन लोग ये जानते थे कि ये सिर्फ व्यक्तिगत इनके आपस की ईगो प्रॉब्लम्स हैं, बाकी लगभग ये एक जैसी बातें कर रहे हैं। वो भी, नेहरू भी समाजवादी था, जयप्रकाश नारायण भी समाजवादी था, लोहिया भी समाजवादी था। इनमें क्या डिफरेंसेस है, ये बहुत ही न्यूएंसेस है, बहुत छोटे छोटे डिफरेंस है जिसको आम आदमी नहीं समझ सकता। इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए था वही आपस में लड़ लिए इसलिए अलग पार्टी बना ली। तो उस समय जो कांग्रेस पार्टी शासन कर रही थी वो उसका मूल कारण, उसका मूल आधार ये था, एक नया देश बना है, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो जो अंग्रेजों की अच्छी नीतियां थी उसको स्वीकार करते हुए, जैसे ब्यूरोक्रेसी को भंग नहीं किया गया, आज भी चल रही है आईसीएस सिस्टम, वो आज भी बहुत मजबूत है। तो ब्यूरोक्रेसी को वैसे वैसे ले लिया, रूल ऑफ लॉ को ले लिया। आज अब चेंज हो रहे हैं, जैसे हमारे जो पेनल कोड है वो जो अंग्रेजों का था वही चल रहा था, इंडियन पेनल कोड। बहुत सी चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 1935 का एक्ट था, वो आधार था कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे। तो जो पुरानी परंपराएं, अच्छी परंपराएं थी
जिससे देश में स्थिरता आ रही थी, उनको स्वीकार करके देश को आगे बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे परिवर्तन ला रहे थे. What I'm trying to argue out is, in the first 20-30 years, India was gradually growing with continuity of the past. 2014 तक ये चलता रहा. 2014 से पहले एक बार चेंज हुआ जब मनमोहन सिंह जी ने 1991 में नरसिंह राव समय में वो इंडिया को ओपन किया, ओपनिंग, और उसका प्रभाव पड़ा कि कांग्रेस का जो ये सिस्टम था कि धीरे 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 आगे चलना है, वो चैलेंज हुआ विद इन कांग्रेस, बाय कांग्रेस इटसेल्फ, बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, इंटरनेशनल कंडीशंस. तो नई पॉलिटिकल पार्टीज आई, उनको समर्थन मिलने लगा जो इस रास्ते को और तेजी से आगे बढ़ाना चाहते थे. कांग्रेस ने तो खोला था रास्ता, उसको और तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाले सारे पॉलिटिकल पार्टी धीरे धीरे आगे आने लगे. इंटरनेट का प्रभाव हुआ, उससे राइट्स की डिमांड होने लगी, और ग्लोबलाइजेशन के कारण से लोग कहने लगे जल्दी जल्दी करो, ये हमको आगे बढ़ना है. तो बीजेपी ने उसका फायदा उठाया, वो उस रेस में वो आगे बढ़ गई कि हम टोटली ओपन कर देंगे, सारा प्राइवेटाइजेशन कर देंगे. कांग्रेस धीरे धीरे कर रही थी, हम तेजी से कर देंगे, बात तो वही है. तो ये 1990 के बाद में चेंज होने लगा तेजी से. और 2014 में जब बीजेपी सरकार में आई, तो पहली सरकार थी फुल अपोजिशन की. इससे पहले कांग्रेस से कुछ दूसरी पार्टीज आई थी, इवन बीजेपी भी आई थी, लेकिन वो इतनी आई थी. ये जो बीजेपी आई, इसमें इन्होंने अपनी पॉलिटिकल विल स्थापित की कि हम इस देश को तेजी से बदलना चाहते हैं. उस दिशा में नहीं जिस दिशा में कांग्रेस ले जा रही थी, उसी को तेजी नहीं करना चाहते. यानी 1991 में जो ओपननेस की है, उसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते. हम इसको एक दूसरे मोल्ड में भी डालना चाहते हैं. हम उसको एक रिलीजियस बेस बनाना चाहते हैं. हम इसको बैक टू वेदास जिसे कहा जाता है. हम इसको कंजर्वेटिव भी बनाना चाहते हैं. हम नेशनलिज्म को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं. तो 2014 के इलेक्शन में जो इलेक्शनिंग हुई थी, उसको आप ध्यान से देखें. उससे पहले कभी इलेक्शनिंग ऐसी नहीं हुई थी जिसमें उससे पहले के 70 साल को नकारा गया और कहा नई दुनिया, नया देश, नया इंडिया बना रहे. जैसे आजकल कह रहे हैं अमृत काल चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है. तो वो 70-75 साल की ट्रेडिशन को नकार कर एक नया इंडिया बनाने का स्लोगन पहली बार 70 साल में दिया गया. उससे पहले किसी ने नहीं कहा. 77 में परिवर्तन हुआ, उन्होंने ये कहा नया इंडिया बना रहे हैं. उन्होंने कहा नहीं, ये इंदिरा जी ने गलत किया था. 1989 में चेंज हुआ तो कहा राजीव जी ने गलत किया था, इसलिए हमको दो वोट. इवन 1999 में वाजपेयी जी आए थे, उन्होंने कहा था नेहरू जी ने गलत किया था. लेकिन 2014 में उन्होंने कहा कि सबने गलत किया था, पुराने ने पूरा देश बर्बाद कर दिया, अब हम नया इंडिया बना रहे हैं. सो देयर इज ए क्वालिटेटिव चेंज इन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल विल ऑफ पॉलिटिकल एलिमेंट्स. ये 4 बिंदु मैं मानता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति, भारतीय राजनीति में, जिन्होंने पॉलिटिकल कैंपेनिंग पर प्रभाव डाला है. अब क्या प्रभाव डाला है 2-4 मिनट में मैं ये भी बता दूं आपको. ज्यादा समय शायद नहीं हुआ होगा, 2-4 मिनट और दे दें अगर आप. पहला जो भी मैंने चौथा पॉइंट बताया, इसी से उपजा हुआ पॉइंट है कि कैंपेनिंग एग्रेसिव लैंग्वेज में होने लगी. जिसे आज कहते हैं कि स्तर बहुत नीचे गिर गया भाषा का. उसका कारण ये था कि पॉलिटिकल विल में वो दुनिया, इंडिया को नया इंडिया बनाना चाहते हैं उनके हिसाब से, जो भी जीतने वाले थे. तो नया इंडिया बनाने के लिए आपको एग्रेसिव लैंग्वेज काम में लेनी पड़ेगी. वो नहीं लेनी पड़ेगी जो 1947 से चल रही है आराम से. इन्होंने कहा पुराने 70 वाले सारे चोर थे, सब भ्रष्टाचारी थे, देश को बर्बाद कर दिया. अब हमको दो, हम भ्रष्टाचारी को पकड़ पकड़ के लाएंगे, हम सबको 10-10 लाख रुपए दे देंगे, हम इनको सबको जेलों में डाल देंगे, हम एक नया दुनिया बनाएंगे जिसमें कि हिंदू बहुत आराम से रहेगा. This language was created to implement their new political will कि इंडिया को एक नया इंडिया बनाना है, इसलिए एग्रेसिव हुआ. तो पहले तो सत्ताधारी होते हैं, फिर धीरे धीरे तो कांग्रेस को समझ में आया था, वो भी एग्रेसिव हो गई. दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को समझ में आया, अगर ये तो एग्रेसिव होने से वोट मिल रहा है तो हम भी एग्रेसिव हो जाते हैं. तो ये जो आप टीवी पर गाली गलौज देखते हो, वो इसका नतीजा ही है. वो इसका नतीजा है कि वो अगर नया इंडिया बना रहा है तो ये कह रहा है नहीं, हम पुराने इंडिया को रखेंगे, नया इंडिया कैसे बना रहे हो, तो लड़ लो आपस में. That is what's the first change in campaigning is the language of campaigners. कि जो कैंपेन करने वाले हैं वो चाहे सोशल मीडिया पे करें, चाहे टीवी पे करें, चाहे अखबारों में लिखें, चाहे सड़क पे करें,
उनकी भाषा का कंटूर ही बदल गया है, भाषा का लहजा ही बदल गया है। मजा किया, कोई पप्पू कह रहा है, कोई फेंकू कह रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या भाषा काम में ले रहे हैं, कोई उनको पुरखों को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है। ये क्यों आया? क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी भारत की जो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था, उसको ब्रेक करके एक नए तरह का एकदम से इंडिया बनाना चाह रहा है। इसलिए ये भाषा सबसे पहले परिवर्तित हो गई कैंपेनिंग की। दैट इज वन। सेकंड है यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बहुत प्रभावित हो गया, इस पर बहुत रिसर्च हो रही है इंटरनेट पर। एक आप लोगों को ध्यान होगा कि 2010-2011 में अरब कंट्रीज में रिवॉल्यूशन हुआ था, अरब रिवोल्ट जिसे कहा जाता है। 4-5 कंट्रीज में सत्ताधारी जो तानाशाह थे उनको हटा दिया गया और डेमोक्रेसी वहां पे आई, ट्यूनीशिया में, बहुत सी जगह पर। और वो जो सड़कों पे लोग उतरे थे तानाशाही के खिलाफ, वो कोई सड़कों पे उन्होंने कोई कैंपेनिंग नहीं की थी, वो सारी कैंपेनिंग इंटरनेट के माध्यम से हुई थी। और बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें इस पर आई है, द रोल ऑफ इंटरनेट इन क्रिएटिंग पॉलिटिकल डिसेंट। राजनीतिक जो डिसेंट क्रिएट होता है और उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण 2010-2011 में आ चुका है, जब 4-5 देशों की सरकारें नहीं, सिस्टम ही बदल दिया गया। सरकार बदलने का नहीं था, वहां पर तानाशाही खत्म करके डेमोक्रेसी आ गई, सिर्फ इसी के कारण। इसलिए आप देखेंगे कि चाइना में अभी तक वो बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन है सोशल मीडिया पर। तानाशाह, आप साउथ नॉर्थ कोरिया में सोशल मीडिया अलाउ नहीं है। रोज हांगकांग में इस बात में झगड़े होते हैं सोशल मीडिया कितना उपयोग किया जाए। और जहां पर भी सत्ताधारी डेमोक्रेसी खत्म करना चाहता है, वो सोशल मीडिया पर नियंत्रण करना चाहता है। अब तो सोशल मीडिया इंडिपेंडेंट भी हो गया, यानी ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि फेसबुक के फाउंडर और दूसरे जो सोशल मीडिया चलाने वाले हैं, वो भी बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष से कोलैबोरेट करते हैं और वो कुछ चीजों को कम कर देते हैं, कुछ को ज्यादा करते हैं। यानी दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी ऑफ कंट्रोलिंग सोशल मीडिया टू प्रोपेगेट सच ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। वो अलग इशू है। लेकिन अब सोशल मीडिया के आने बाद से, जिसका मैंने उदाहरण दिया बहुत बड़ा 2011, जो अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, इस पर बहुत रिसर्च हुई है। ट्रंप और ओबामा के चुनाव के बाद में वहां पर सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हावी हो गया, और अब दुनिया भर में हो गया, भारत में भी हो गया। हम देखते ही हैं आजकल वीडियो, हजारों तो वीडियो चैनल बन चुके हैं, हजारों। आजकल तो रील्स बनने लगी बहुत छोटी छोटी, उसी से प्रचार होता है। आप देखिए 24 घंटे छोटा सा एक टुकड़ा कहीं से तोड़ के, वो आप जो नेक्स्ट डिस्कशन करने वाले हो पोस्ट ट्रुथ की, तो वो उसमें देखिए आप रील कहाँ से। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आ गई है, उससे अपनी उनकी भाषा में, उनकी आवाज में आ जाता है। यानी आप दूसरे की आवाज ही क्रिएट कर लो और उसमें दे दो, बोल दो कुछ, कौन किसको देख सकता है। सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज इन political campaigning from 1952 to 2019 and now is the growing role of social media. The third is emphasis on data. आज से पहले 1952 में कोई डेटा वेटा नहीं होता था, किसी को पता नहीं था कौन वोट दे रहे हैं। थोड़ा सा जो लिस्ट मिलती थी इलेक्ट्रेट से, उसी पर वोटिंग करनी जाती थी। आज आप किसी भी इलेक्शन सीनियर या सीरियस इलेक्शन लड़ने वाले से पूछिए, उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का सारा डेटा उसके पास है, सबकी जाति उसके पास है, सबके धर्म उसके पास है, सबकी आयु उसके पास है, सबके बच्चे कहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, सब उसको पता है। और उसको ये भी पता है उस मोहल्ले में, उस जगह पर कौन कौन इन्फ्लुएंसर है, किस किस को कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है। यानी अब आपको एक्चुअल जाने की जरूरत ही नहीं मोहल्ले में, आप तो उस मोहल्ले का सारा डेटा आपके पास मौजूद है। वो मार्केट में हम जानते हैं, हम रोज हमारे पास इस प्रकार के आते रहते हैं कि साहब अपना सोशल मीडिया हमारे डेटा चुरा रहा है और चुरा के बेच देता है। आप जितने भी फेसबुक और ट्विटर और इस पे फलाने ये है, इन सब से हमारा डेटा चला जाता है, फोन से चला जाता है डेटा। आप कोई भी वेबसाइट खोलिए, उससे आपका डेटा चला जाएगा। आप आजकल तो वेबसाइट खोलते हुए कह देता है कि ऑटोफिल ही आ जाता है। आपने कोई वेबसाइट खोली, यानी उसको पता है कि आपका ये है नाम, ये है एड्रेस, ये फोन नंबर, ये सब है। वो कहता है हम खुद ही भर लेंगे, आप तो पैसे भेज दो, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। तो जैसे अमेज़न से आप एक किताब खरीदो तो वैसे हमेशा आती रहेगी, ये नई किताब आ गई, आपके इंटरेस्ट की, इसको खरीदो, इसको खरीदो। दे नो ऑल द डेटा। सो नाउ द इलेक्शनरिंग कैंपेनिंग इज फोकस्ड मोर ऑन डेटा एक्वायरिंग, और उसको यूज कैसे करें, एनालिसिस करें। इसलिए उसके कारण से क्या हुआ है कि जो हम पहले देखते थे, जो आप इन्होंने कहा
जो गली गली में लोग घूमते थे और मोहल्ले में लोग इकट्ठे होते थे कि भाई वोट किसको दे क्या दे, उनको जरूरत ही नहीं। वो कंप्यूटर पे 5 जने बैठ जाइए, वो आपको बता देंगे। ये भी बताते हैं, आपको पता होगा, आपके पास आएगा, मेरे पास भी आया था, आपके पास भी फोन आते होंगे कि आपने 2 बजे तक वोट नहीं डाला तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, अरे भाई वोट डालने जाओ। अगर उनको लगता है कि ये मेरी पार्टी का आदमी है तो वो भेज देगा, दूसरा पार्टी वाला नहीं भेजेगा, आपकी पार्टी वाला भेज देगा। कि बाहर आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी भेज देते हैं, आपका वोट अब तक नहीं गिरा। तो नाउ दिस इज द चेंज इन कैंपेनिंग बेस्ड ऑन डेटा। बट लास्ट में इसी से है कि नाउ कैंपेनिंग इज बेस्ड मोर फ्रॉम द हेल्प फ्रॉम द एजेंसीज। पहले था कि कार्यकर्ता काम करेंगे, उनको बुलाओ, उन पे घर पे बुला खाना खिलाओ, उनको नाश्ता कराओ, उनकी समस्याएं सुनो, उनको पैसे दो तो भैया पेट्रोल भरा लेना और चले जाना वहां पे, आज दिन भर वहाँ गाड़ी घुमाना। वो क्या नहीं, आप एजेंसी को, डिजिटल किसी एजेंसी को ठेका दे दो, उसका काम है ये सब करना, हमारा काम ही नहीं। हमारा काम तो ये वो जा कहीं वहां चले जाओ, वहाँ भाषण दे दो, वो काम करे। वो पोस्टर कैसे बनना है, किसकी फोटो लगानी है, किसकी नहीं लगानी है, कौन से इश्यूज को रेज करना है, किसको नहीं करना है। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हम सब लोग जानते हैं, वो बड़े बड़े एजेंसीज क्रिएट हो गई है जिनसे समझौता करती है, उनके एग्रीमेंट होते हैं करोड़ों के, और उसके आधार पर कैंपेनिंग चलती है। तो इसका मतलब जो वर्कर्स है वो बेचारे जो रोते रहते हैं आजकल भी, कह रहे हमको कुछ नहीं मिला, 5 साल हमने वर्क किया, वो कहते कुछ किया ही नहीं वर्क, इन्होंने मुझे जरूरत ही नहीं है, चुनाव में हमें इनकी जरूरत ही नहीं है, इनका काम ये थोड़े से पैसे दे दो वर्कर्स को, जैसे चुप रहेंगे 15 दिन, बाकी इनकी जरूरत ही नहीं है, हमारे पास वो लोग हैं अपने पर्सनल लोग, आप बूथ पे बैठाते हैं कैंपेनिंग्स के द्वारा, उनके पास ठेके के लोग हैं। आपको आजकल देख रहे हो, आजकल रैलियां निकल रही है, लाखों लोग एक ही जगह पर, 2 कैंडिडेट है, दोनों के करोड़ लाखों लोग आ रहे हैं। अरे यार, या तो इधर वाले वोट देंगे, इधर देंगे, वही लोग हैं, वो शर्ट बदल के आ जाता है, इधर भी आ जाता है, इधर भी आ जाते हैं, और दोनों कैंपेन करते हो, सब लाखों की भीड़ हो गई, यही जीतेगा, दूसरे का था लाखों की भीड़ हो गई, यही जीतेगा, लोग वही है, नहीं तो आए नहीं, और वो सब लोग उस कॉन्स्टिट्यूंसी के ही नहीं, वो तो एजेंसी ने कहा कि आप बताइए कितने लाख लोग चाहिए, जैसे ठेके पे लोग होते हैं, हम जानते हैं मकान बनाने में काम आते थे मजदूर, वैसे हो गया कैंपेन के लिए आपको कितने लोग चाहिए उसके ठेकेदार है। सो नाउ द कैंपेनिंग इज चेंज्ड, डिपेंडेंस ऑन वर्कर्स इज लेसन नाउ, उसकी वजह सर्वे होगा, कैंपेनिंग स्टाइल क्या होगी, कैंपेन में क्या किया जाएगा, ये सब चेंज होता जा रहा है। सो इसका नतीजा क्या है इन सबका, कि चुनाव खर्चीला होता जा रहा है। जो कहते हैं ना गरीब आदमी लड़ता है, कोई गरीब आदमी नहीं है, गरीब आदमी लड़ ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं उसकी जाने की। आपको ये सब चाहिए तो इसके लिए पैसा चाहिए, आप कहाँ से कैंपेन, किस एजेंसी को लोगे, किस सोशल मीडिया कैसे यूज करोगे, आपका 4-5 सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए जो रोज घुमाते रहें, फिर उसको वायरल करें, उसके लिए लोग चाहिए, एक ट्वीट के लाओ 1 रुपया, आप सोशल मीडिया पे 50 लाइक कराओ तो उसके पैसे लाओ, आपको 1000 लोग चाहिए जो कि है तो उन 1000 को पैसा दो। सो नाउ इट इज बिकम वेरी एक्सपेंसिव। तो डेमोक्रेसी के ये जो लोग हैं जिनको हम देख रहे हैं, आप देखिए सबके जिन्होंने भी फॉर्म भरे हैं, एक भी आदमी उसमें लगा कि उसके पास पैसा नहीं हो। मेरे को तो कह रहे थे घर वाले, मेरे को तो कि जैसे आपको भी कहते होंगे तो पापा यार आप इलेक्शन मत लड़ना, नहीं तो आप एक्सपोज हो जाओगे, यार आपके पास कुछ है ही नहीं, अभी चुपचाप तो बैठे हो, पता ही नहीं पड़ रहा किसी को पैसे वाले हो, ये भ्रम तो है, नहीं तो आप तो एक्सपोज हो जाएंगे, सबके करोड़पति है सर। और ये तो वो है जो कि दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो तो अलग है, जो दिख रहा है उसमें करोड़पति है। एक भाई साहब उसमें लिखा है हमने 20 करोड़ रुपए उधार दिए, अरे यार तूने किया क्या, आए कहाँ से तेरे पास 20 करोड़ रुपए कि तूने उधार दे दिए, तूने कभी काम तो कुछ किया ही नहीं, हमको पता ही नहीं कोई काम किया, कोई नौकरी करी होगी, बिजनेस किया, नो वन नोस फ्रॉम वेयर डिड यू गेट 20 करोड़ रुपीज। तो ये 3-4 चीजें हैं जो बताना चाह रहा था, जो नए चेंजेस आ चुके हैं, इसके अंतर्गत हमें देखना है। लेकिन मेरा फिर भी अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा मानना है कि भारत एक महान देश है, भारत बहुत ही फ्लेक्सिबल देश है, भारत बहुत ही 2500-3000 साल की हमारी संस्कृति है, हमने कई तरह के बदलाव देखे हैं, उनको सबको झेल लेते हैं हम, और धीरे धीरे चलते हैं, तेजी मत करो, इट इज एन एलिफेंट विच जस्ट वॉक्स स्लोली। अब ये जो कोशिश कर रहे हैं जल्दी से मार के उनको, ऐसा नहीं होता, ये तो नए देश करते हैं, अमेरिका जैसे करता है, 300-400 साल हुए बच्चा है, वो तेजी से चेंज करता है। हम तो 5000 साल से चीन अगर तेजी से चेंज करते तब तक जीवित ही नहीं रहते, इसलिए आराम से चलो, मस्त रहो, हमारे कोई जल्दी नहीं किसी को, हम सब लोग आराम से रहते हैं, जितना मिल जाए उतना खा लो, जितना कम उतना कर लो। इफ वी ट्राई टू implement something which is drastic,
then I don't think that we will survive as a democracy. डेमोक्रेसी में जीवित रहने के लिए आपको दूसरों की बात सुननी पड़ेगी, सहन करनी पड़ेगी और धीरे धीरे परिवर्तन करना पड़ेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर नरेश दाधीच जी। आपने बहुत ही सारगर्भित और तार्किक ढंग से हमारी उस लोकतांत्रिक यात्रा के 75 वर्षों के अनेक पक्षों पर बहुत ही गंभीर विवेचन विश्लेषण प्रस्तुत किया। किस तरह से भारतीय लोकतंत्र जीवित है और इन सारी बाधाओं के बावजूद, इन चुनौतियों के बावजूद आज तक दुनिया में हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में जीवित है। और विशेषकर चुनाव अभियानों में वो लाउड स्पीकर और गली मोहल्ले की मीटिंग से लेकर के सोशल मीडिया तक की उस यात्रा के विभिन्न चरणों का बहुत ही सुंदर सटीक विश्लेषण आपने प्रस्तुत किया। बहुत विस्तार से मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपने हमें सोचने के लिए विवश किया है और जिन उद्देश्यों को या जिस लक्ष्य को ध्यान में रख के हमने आयोजन किया था उसके साथ आपने बहुत ही प्रभावी ढंग से उसका न्याय किया है। और अब मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर मृणाल चटर्जी को। प्रोफेसर मृणाल चटर्जी भारतीय जनसंचार संस्थान ढेंकानाल के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। आपका मीडिया और शिक्षण दोनों के साथ प्रभावी जुड़ाव रहा है। तो शिक्षण में आने से पहले आप उड़िया के प्रमुख अखबार संवाद के संपादक रहे। टेलीविजन के कई चैनल्स में आप रेगुलर आपकी अपीयरेंस होती रहती है और वहाँ का एक उड़िया चैनल है शायद ETV का, उसके करीब 3-3.5 साल तक आपने जो साइंस का शो है उसको भी आपने कंडक्ट किया है और टाइम्स ऑफ इंडिया की फेलोशिप पर भी आपने साइंस जर्नलिज्म को लेकर के एक विशेष अध्ययन किया था। एक साहित्यकार के रूप में भी प्रोफेसर मृणाल चटर्जी ने अपनी पहचान बनाई है। आपने कई उपन्यास लिखे हैं और जिनका कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है और पिछले लगभग 2 दशक से आप भारतीय जनसंचार संस्थान के साथ संबद्ध हैं और हाल ही में आपको अभी डिलीट की उपाधि भी मिली है। मैं प्रोफेसर मृणाल चटर्जी, कम्युनिकेशन टुडे में आप नियमित रूप से लिखते रहे हैं और हमारी इस पूरी वेबिनार श्रृंखला में मुझे समय समय पर आपका सहयोग मिलता रहा है। हाल ही में मृणाल सेन पर जो हमने स्पेशल इशू निकाला था उसमें भी मृणाल जी ने गेस्ट सेक्रेटरी के रूप में हमें विशेष सहयोग दिया था। मैं मृणाल जी का वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ। मृणाल जी आप हमारे साथ हैं ना? हाँ मैं तो हूँ, लेकिन ये वीडियो आई डू नॉट नो क्या हो गया। हाँ चल गया आपके बोलते ही वीडियो चल गया है। तो मैं मृणाल जी से अनुरोध करूंगा। मेरे स्क्रीन पे तो अच्छा नहीं बिल्कुल आप दिख रहे हैं। आजा। मैं मृणाल जी से अनुरोध करूंगा क्योंकि इस पूरे आयोजन की संकल्पना में भी मृणाल जी का मुझे सहयोग मिलता रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर आप अपने कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करें। भाई मृणाल जी। नमस्कार, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ जी। The contours of political campaigns in India, as my previous speaker had rightly mentioned, have been evolving over the years due to various factors. Let me foreground the factors. One of the factors is a changing socio-economic and political scenario. Demographics is another factor. Shifting voter priorities, changing media ecosphere, growing social media influence, technological advancements, and also new laws and rules. All these have impacted how the campaign had evolved. Now let me give you some background. The first general elections in independent India was held between 25th October 1951 and 21st February 1952. In the last 73 years, from 52 to 24, 17 general elections have been held. Voter turnout has incrementally increased. In 1951-52, it was about 45%. In 2019, the last election, it was about 67.40, about 67%.
Number of registered voters in the first election was about 17.3 crore. In 2024, it's 98.6 crore. So from 17 crore to 98.6 crore. That's a huge increase in registered number of voters. Now, a quick look at India's journey in the last 7 decades would set probably the context. In these 73 years, literacy has increased from 18% to 74%. Per capita income has increased. Real per capita income doubled during the first 4 decades, and then more than doubled again within the next 20 years. In 2010-11, the real per capita income is 60,000 plus. Life expectancy has increased from 35 years in 1950 to 70 almost in 2024. So this has been increased. This has been the good side. But as everybody says about India, India has always been a land of paradox, where opposites coexist with equal measures. Now look at the other side. India was 65th among 84 in Global Hunger Index in 2009. And 2023 Global Hunger Index, India ranked 111th out of 125 countries that the survey was undertaken. Inequality in India has skyrocketed since early 2000. With the income and wealth share of the top 1% of the population rising to 22.6% and 40% respectively. So that is the quantum of inequality. There's a huge gap between the rich and poor, a small elite class enjoying more than a huge poor class of people. This inequality perpetuates social inequality. And therefore, it is no surprise that India ranked 111th and 117th in 2014 and 2015 out of 158 countries in the World Happiness Report. 2024 Happiness Report ranks us among 143 nations, 126th. Ladies and gentlemen, if we look at this, then we can conclude that ours is a country that rose from poverty to relative affluence. Our literacy and lifespan has increased, but we are still hungry and unhealthy. We are aspirational but unhappy. That is, in short, the profile of an average Indian. And all these factors influence our politics in terms of policies, programs that a party or alliance of parties want to bring in. Political campaign in India, sadly, is not about policies, programs, pedigree of the party, or even capability of the leaders. It's much more than that. Now, what are these factors? One, religion, caste, community, they play a big role. Regional focus on regional parties becoming strong in respective states. This trend started in 80s and continuing. Contemporary socio-political issues, suddenly something happens. Issues like corruption, nepotism, favoritism, etc., etc. Issues related to Ashmita, Swabhiman, self-respect, either valid or imagined, perceived, whatever. There are these sops and freebies. Every political party, what this name is raining sops and freebies. Then there is a contribution of money, muscle, liquor, etc. And then big data, about which my previous speaker has said. Big data. That has also changed the contour of political campaign. Now, what has been the change in the last 7 decades? One, election campaign in India has become more expensive. Factor this. In the first general election, the expense limit per Lok Sabha constituency per candidate was 25,000 rupees. 25,000 rupees.
In 2024 elections, it's 95 lakh rupees. And that's individual candidate can spend. There is no cap on how much parties can spend. Very conservative estimate, parties spend anything between 10 to 50 or even more crore per constituency. Elections have become very expensive. And that is one of the reasons why not many independent candidates are in the fray, or even if they are in the fray, they are not winning. From 51 to 2019, if you say, there is a diminishing trend of independent parties winning. So much so that our finance minister says, I cannot contest Lok Sabha elections because I do not have that kind of money. Right. Second is gradual professionalization of campaign. From planning to execution, everything has become professional. From 1950s to late 1980s, election campaign was largely planned and conducted, executed by party functionaries and workers, with some help from advertisement agencies. 90s onwards, professionalization started. It was largely done by professionals. By the first decade of the new millennium, specialized companies emerged who would handle it like corporate managers, corporate companies, managers. They do it with data analytics, SWOT analysis, strategic planning, all these. With AI, it's even becoming more tech-driven. The other day, I found advertisement of some companies who were advertising their expertise in handling all this. And the world has come to this. Now, the third point that I want to highlight is eventivization of campaign. The entire campaign, if you look closely, it has been broken into series of events. एक पूरा कैंपेन आप देखो, छोटी छोटी इवेंट में इसको टुकड़ों में बांट दिया है, and every small element has been eventivized. It's handled like an event. Even the door-to-door campaign is also handled like an event. And everything is meticulously planned with the help of big data. Now shift from party program-driven campaign to personality-driven campaign. Gone are those days when in the campaign, it was party, CPM के वोट दी, कांग्रेस को वोट दीजिए. No more. It's now Modi की सरकार. It's now Mamata की सरकार. It's now Nabin सरकार. Personality. So this shift from a party, a collective entity to individual, that has been a big change. Look at the slogans. Modi ki guarantee. Look at the slogan like Indira is India. Look at the carefully chosen slogan, Nabin Odisha. The fifth point that I want to highlight is civility is gradually vanishing. The tahjeeb we used to look at or we used to experience in gone by days, right? That is gradually vanishing. The election campaign is becoming shriller, name calling, liberal use of expletives, slanging match abound. धीरे धीरे वो level गिर रहा है over a period of time, and there can be explanations. There can be what we can try to explain why this is happening, but the fact of the matter is this is happening and this is not good. Now, increasing campaign on digital space. Gradually campaign, I am not saying that this is shifting to digital space, but digital space is also being used proactively. Look at the, and this has to do with the changing demographic profile. Younger India now, and they are more social media savvy. And therefore, digital space is occupying more of effort, more of probably
attention of political parties. However, it hasn't diminished the importance of visibility, of big rallies, of door-to-door campaign. That personal visibility, physical visibility is important. And that's why all political parties have lined up, a list of what they call star pracharak, the star campaigners. But digital space is being explored more and more. Now, another thing has happened, which probably should take our attention, that humor has moved from physical to virtual dunya. In earlier times, we used to have wall writings. EC has put a ban on that. In the wall writings, there used to be graffitis, especially in Bengal, Odisha, in eastern states mostly, and Kerala. We used to have graffitis. Graffitis used to have funny pictures, cartoons, limericks, and all those. In fact, there is a book called Bhot Rongo in Bangla, which chronicles the limericks that was written, that used to be written on walls. So that humor, banter, satire, that has shifted to digital space in the form of memes. If you look at political memes, excellent political memes, excellent in the sense that it's hilarious. It at times is uber satirical, but at times it's absolutely hilarious, mind-blowing. And if you read and look at those memes, you will really appreciate the creativity of people who have created these memes, both single frame meme and video memes. It has moved from physical to digital dunya. Another thing which has happened, the songs, the design of the festoons, the slogans, they have all been kind of scaled up. We have now better songs. We have now probably better choreographed programs, election campaigns than ever before. Last but not the least, fake news and deepfake videos abound. I have a couple of deepfake videos, which probably I'll try if I can show you some. And these are a threat. These are a threat because some deepfake videos are scary because you can't make out whether this is real or fake. But there is a tendency to use it more and more to impress the voters. These, ladies and gentlemen, has been the changes in election campaign. How will it impact the voters? There is no way to know. We can only guess. Even psephologists in India only guess. Thank you very much. Let me just try if I can show you some video. If I can quickly, then probably I will. Otherwise, I will not. Here it is. Let me just quickly show you some photographs also, if it opens quickly. I have a couple of videos also. Let's see if I can show you quickly. Otherwise, I'll wind up. बनावत जी, ये ओपन हो रहा है आपकी स्क्रीन में? हाँ, दिख तो रहा है, लेकिन वीडियो चालू नहीं हुआ अभी। वीडियो नहीं, ये एक पीपीटी ओपन हो रहा है। हाँ, अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो पावर पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा है ना? हाँ, आ रहा है करके just allow me 1 sec. हाँ, हो गया।
हो गया ना मैम? क्या हो गया फिर? चेंज नहीं हो रहा है ये। कोई नहीं क्या? लेट मी, अब चेंज हो रहा है? फर्स्ट स्लाइड, हाँ हो गया, ठीक है। आ गया ना? तो ये चेंज की फैक्टर्स मैंने कहा था, ये विजिबल चेंज मैंने कहा था 50 to 70 में ये चेंजेस ये इस तरह की होती थी जो कैंपेन। एंड देन ये 52 की एक फोटोग्राफ, ये 60s की फोटोग्राफ, ये वाजपेयी जी, यहां से यहां की जो दौर आप देख सकते हो, जी चेंज in how do you organize a rally. ये पोस्टर्स यूज किए हर इलेक्शन में होता था, एंड देन लार्ज बैनर्स यूज हुए। साउथ में कटआउट्स की एक रिवाज है, ये कटआउट्स आप देख सकते हो, ये बड़ी बड़ी कटआउट्स होती थी। ग्राफिटी के बाद जो कर रहा था मैं, ये ग्राफिटी है, ये 2019 की पहले की ग्राफिटी। ये वॉल राइटिंग्स बहुत पॉपुलर हर जगह में थी टिल बंद किया इसी ने। इलेक्शन मर्चेंडाइज की एक बड़ी व्यापार है, एंड इलेक्शन मर्चेंडाइज इलेक्शन कैंपेनिंग में बड़ी काम की चीज सिद्ध होता है। आई रिमेम्बर अजित पांजा व्हेन ही यूज्ड टू फाइट इलेक्शंस फ्रॉम तृणमूल, he used to take with him ये मैच बॉक्सेस में वो उनकी जो चुनाव चिन्ह वो मैच बॉक्स में ही था होता था, तो वो देते थे। एंड नाउ प्रॉब्लम हो रहा है। ये पॉपुलर स्लोगन्स के बारे में आपने बताया भी था। अब हम देखते हैं अगर ये वीडियो खुलता है, अगर खुलता है तो मैं दिखाता हूं आपको, अगर नहीं खुलता है तो this used to be the slogan at that point of time. These were some popular slogans. ये वोट की गाने जो हैं, ये एक गाना ये 2024 में बीजेपी की गाना है, उन्होंने अभी रिलीज किया। सालों से देश था हाल बेहाल, प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल, फिर देश नामों को छुपकर लाया, नामों ने भी अपना वादा निभाया, उन्नत जो था बस सब। ये और एक देखिए, ये केजरीवाल जी की है। आपने ये दोनों में एक चीज नोटिस कीजिए, द फर्स्ट इज ऑल अबाउट नामो, द सेकंड इज ऑल अबाउट केजरीवाल। ना तो वहां बीजेपी को फोरग्राउंड किया गया है, ना तो यहाँ के आपको फोरग्राउंड किया गया है। तो ये जो है, ये आज की जो कैंपेन है उसकी एक खासियत है। ये उड़ीसा की एक पंचायत इलेक्शन की बना रहा था वीडियो।
आप देख सकते हो कि वो कहां तक आया हुआ है ये गाने 90s 19 ऑनवर्ड्स। तो हम ये कांग्रेस की एक गाना सबसे ऊंचा तिरंगा लहरा रहा है, झूम रहा है आसमान, इसकी धड़कन ऐसे है कोई धुन। ये पहले, अब पर्सनालिटी पे ज्यादा ध्यान है। ये एक वीडियो आप देख सकते हो, ये यूपी के इलेक्शन से पहले एक वीडियो जारी किया था बीजेपी योगी गवर्नमेंट। इसकी एंड बड़ा यह है, इसकी जो एंड है, ये गाना टोटल यही है कि एक माँ रो रही है कि इसका फ्यूचर क्या होगा, गुंडागिरी ये से जो है। एट द एंड ऑफ दिस सॉन्ग हर हस्बैंड कम्स एंड सेज कि अब योगी सरकार आएगी और ये गुंडे एक्सेट्रा खत्म। 2000 से ये चेंजेस हुआ है, 2000 ऑनवर्ड्स। आज की तारीख में अगर देखें तो ये है, ग्रैंड रोड शो विल कंटिन्यू बिकॉज यू हैव टू शो योर माइट एंड ऑल। AI powered social media campaign, wall writings not so prominent, memes को बहुत चला गया जो ह्यूमर, एंड रिसेंट ट्रेंड है ये। AI कैसे यूज कर रहे हैं, ये एक आप इसकी एग्जांपल देखिए। ये करुणानिधि की पिक्चर है। करुणानिधि की देहांत हो गया 2018 में, लेकिन 2024 जनवरी में उनका AI जनरेटेड पिक्चर उनकी ही वॉइस में, वो स्टालिन जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वगैरह, he was telling that. So this is what will happen, and in this election also you will find a lot of campaigns like this. Dead people, their avatars coming and telling us and trying to impress the voters. ये इलेक्शन में बहुत ज्यादा होने वाला है। एक डीप फेक वीडियो बहुत ज्यादा आने वाला है, ये तो आप जान के ही रखिए कि बहुत डीप फेक वीडियो आने वाला है। Therefore, all the voters should be very careful about believing any video that they see. इस बारे में एक वीडियो है, बस एक इंडिया टुडे ने इन पे बहुत काम किया है, उसकी उनकी एक वीडियो दिखाता हूं। Some problem, some. I'm sorry, ये वीडियो नहीं प्ले हो रहा है। उनका उन्होंने एक स्टोरी किया था, एन एक्सपर्ट को बुला के, किस तरह की वीडियो बन रही है and how we should be careful about believing some video that has been foregrounded. Thank you very much. चलिए, आभार बहुत बहुत भाई मृणाल जी, आपने भी बहुत विस्तार से इन चुनाव अभियानों के स्वरूप में हो रहे परिवर्तनों की ओर संकेत किया। किस तरह से देश में साक्षरता के साथ साथ जीवन प्रत्याशा में तो वृद्धि हुई है, लेकिन भूख और गरीबी में यह देश और आगे बढ़ता चला गया। लेकिन इन सब के बावजूद इस खर्चीली चुनाव व्यवस्था में किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं, और डिजिटल कैंपेनिंग, विशेषकर AI जनरेटेड और ये डीप फेक की जो आपने बात की, किस तरह से ये पूरे चुनाव अभियानों को परिवर्तित कर देगी, और किस तरह से जो प्रोफेशनल एजेंसीज का इसके साथ जुड़ा हुआ है, उन्होंने कैसे हमारे इन चुनाव अभियानों के स्वरूप को बदला है। जहां राजनीतिक दल केंद्रित चुनाव प्रचार हो रहा था, अब वो व्यक्ति केंद्रित होता चला जा रहा है। इन सब मुद्दों पर आपने बहुत विस्तार से बातचीत की, और अब इसके पूर्व के अपने सत्र को चर्चा के लिए ओपन करें। मैं प्रियंका सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे जो आज के दोनों एक्सपर्ट्स हैं, उनको ई सर्टिफिकेट और ई मेमोंटो से भेंट करें, प्रोफेसर नरेश दादीच और प्रोफेसर मृणाल चटर्जी इनको।
सर ये स्पीकर्स के लिए ई मोमेंटो और ये नरेश सर का ई सर्टिफिकेट. Moving forward, we have e-certificate for Mrinal sir and e-certificate for e-memento for Mrinal sir. Sir, we are very grateful to have you in this platform and having this interactive session as well. Thank you, sir. Thank you so much. अब ये सत्र चर्चा के लिए खुला है. कोई हमारे मित्र सवाल पूछना चाहे, कोई टिप्पणी करना चाहे, क्योंकि मैं देख रहा हूं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है उसमें 63 पार्टिसिपेंट्स हैं. तो कोई सवाल हो, हालांकि समय काफी हो गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि देश के अलग अलग अंचलों से इसमें कई मित्र जुड़े हैं और चैट बॉक्स पे लगातार उनकी टिप्पणियां भी आ रही हैं, कई शोधार्थी भी हैं. इसमें प्रियंका जी वो अनम्यूट तो कर सकते हैं ना? जी सर, अगर कोई अनम्यूट करने में प्रॉब्लम है तो मैं करेंटली कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जिसको बोलना है वो हैंड रेस करें, unmute जिनको भी अपनी बात करनी है. तो सर हमने अलाउ कर दिया, एक्सेस ग्रांटेड है, अगर कोई बोलना चाहता है वो बोल अच्छा सकता है. ठीक है, ठीक है. मुझे लगता है कोई सवाल नहीं है. शायद सारी बात इतनी स्पष्ट हो चुकी है और इतनी गंभीरता से उस पूरे चुनाव अभियान को हमारे दोनों जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर नरेश दाधीच और प्रोफेसर मृणाल चटर्जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है. तो अपन अब सत्र को यहाँ समाप्त करें. इसके पहले मैं पुनः प्रियंका सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें. जी सर, थैंक यू सो मच. आपने मुझे मौका दिया कि मैं वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करूं. वैसे बाय द वे इट्स अ ग्रेट एंड एनर्जेटिक स्टार्ट, सो आई होप कि इट विल great and interactive end as well. A big thanks you to everyone joined our webinar on the topic changing contours of political campaign in India. As we all know, in the case of youth, we need these kind of topic needs to be discussed. Through the initiative of Banawat sir, we took this on this e-platform. I would like to thank Professor Sanjeev Banawat sir, Chief Convener, Media Series Lecturer and Editor of Communication today. Thank you so much to Professor M.N. Huda, Director sir. Guidance and in-depth thoughts. Special thanks to our esteemed speaker, Professor and Dr. Naresh sir, former Vice Chancellor of Vardhman Manveer Open University, Kota, and another expert, Professor Mrinal Chatterjee sir, Regional Director, Author and Translator of IAMC, Odisha, as well as our entire organizing team and technical team as well. Your contribution means a lot to smooth run webinar. Thank you so much, Dr. Ayushi ma'am. Thank you so much, Dr. Usha ma'am. Thank you everyone for their valuable time and their knowledgeable opinion in the chat box as well. Thank you so much to everyone. Stay connected to us because we have another webinar on 18th of April. So kindly. हाँ, जैसा अभी प्रियंका जी ने बताया, 18 अप्रैल को हमारी अगली वेबिनार है जिसमें फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन के मुद्दे को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें MIT यूनिवर्सिटी पुणे के संबित पाल हमारे साथ होंगे, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रूबल हमारे साथ होंगे और इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रवि सूर्यवंशी. ये सब अपने अपने फील्ड में ट्रेनर हैं और इन्होंने वो गूगल की ट्रेनिंग की है जो फेक न्यूज को और मिस इन्फॉर्मेशन कैसे डिटेक्ट करते हैं. तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे. लिंक हमारा भी यही है, सभी मित्रों ने ज्वाइन किया है. बाकी विस्तृत जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू हम आपको दे देंगे. और जैसा मैंने शुरू में कहा था, हमारी पूरी प्रोसीडिंग्स ये YouTube पे हम अपलोड करेंगे इस रिकॉर्डिंग को. तो हमारे शैक्षिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से हमारा मार्गदर्शन करें और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपने मित्रों के साथ साझा करें. हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 650 लोग जुड़ चुके हैं. जो मित्र कम्युनिकेशन टुडे गतिविधियों के साथ परिचित होना चाहते हैं, हमारे जो उसका एडिशन है वो हम सभी को भेजते हैं थ्रू ईमेल और सोशल मीडिया पर. तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारी प्रकाशन से और एक्टिविटीज से, वो हमारा जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक वैसे हम हमारे हर सोशल मीडिया पे पोस्ट के साथ भेजते हैं. यहाँ चैट बॉक्स में भी वो लिंक दिया गया है, तो आप सभी उसको ज्वाइन कर सकते हैं. और एक बार हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद.
जय हिंद, जय भारत। और फीडबैक लिंक्स जनरेट कर दिया गया है और प्रियंका जी इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगी। और हमारे एक्सपर्ट्स यदि चाहें तो वे अब इसको क्विट कर सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट हमारा ये विंडो जो है ओपन रहेगी, जो सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए पार्टिसिपेंट्स को। इसी सूचना के साथ एक बार पुनः आप सभी का आभार।